Hello, good evening everyone. In the previous lecture, we have completed or we have finished our topic diuretics, and in this lecture we are going to start with our new topic, that is we are going to start with new unit, that is cardiovascular system, in which we are going to discuss firstly about the antihypertensive drugs. Okay, we have to discuss about antihypertensive ड्रग्स. ये बेसिकली क्या होता है, जो पीजी मतलब जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रहते हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार. उसके अलावा भी ये पीजी में भी मतलब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रिपरेशंस में आते हैं, देखा जाता है मतलब बेसिकली. ठीक है, रीअपियर होते हैं हर साल. तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बेसिकली जो हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसमें कैटेगरीज ऑफ और 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं. डायूरेटिक्स जो कि पहली आ जाती हैं. अब हम लोगों को देखने मिलेगा कि जितनी भी मतलब जो हमारी डायूरेटिक्स हैं या जो एएनएस की जो ड्रग्स हैं, उनका यूज़ कहीं ना कहीं और जो मतलब उनका यूज़ कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली आने वाले सारे चैप्टर्स में कवर मतलब आएगा. इसीलिए हमने सबसे पहले डायूरेटिक्स और मतलब एएनएस जैसे बेसिक जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, सो इन डायूरेटिक्स वी हैव टू डील विथ 3 टाइप्स, दैट इज थायाजाइड्स, we have potassium sparing diuretic, okay, and we have high ceiling diuretics. Okay, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एंड वी हैव हाई सीलिंग डायूरेटिक्स. सो बेसिक क्या है, 3 क्लास ऑफ ड्रग्स है. ओके, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स के अंदर भी 3 सब क्लासेस. ठीक है, सो इसमें थायाजाइड्स में हमारे पास कौन सा है, क्लोर. We have hydrochlorothiazide. Okay, we have indapamine, and we have chlorthalidone. In potassium sparing diuretics we have furosemide. Okay, and in final that is high ceiling diuretics. In high ceiling diuretics we have furosemide, and in potassium sparing we have our mnemonic, that is SEAC. ठीक है, so this one is spironolactone. Okay, another one is eplerenone, and last one is amyloid. Okay, and we have furosemide here. Next we will talk about, so this is class of drugs. Okay, next we have vasodilators. In vasodilators we basically have 2 types, that is arteriolar, and nextly प्लस वेनोडाइलेटर, या इसको कहा जाए तो वेनोडाइलेटर प्लस आर्टेरियो dilator. Okay, so in this atriolar dilator we have MDH as our mnemonic. We have MDH, that is
minoxidil, we have diazoxide, okay, diazoxide, we have hydralazine, and in this we have sodium nitroprusside. We have sodium nitroprusside. Okay, we have sodium nitroprusside. So in vasodilators we have atriolar dilator or venodilator plus atriolodilator, arteriolodilator जो भी है. So we have sodium nitroprusside here. Okay, so we have seen the two important class of drugs that we discuss in antihypertensive. The another most important class of drug is calcium channel blocker. We have calcium channel blocker. In this we have first class of group, that is phenyl alkyl amine, and in this we have verapamil. In phenyl alkyl amine we have verapamil. Okay, in phenyl alkyl amine we have verapamil. Nextly we have benzothiazepine, we have diltiazem. Okay, diltiazem. And finally we have dihydropyridines. In this we have our common we have a common spell in the end of the drugs, that is dipines. We have dipines in the end of the drugs, dipines. So in this we have we have dipines in the end, that is we have our mnemonic FANN, fan, and bell. So BELL. So बस E को use नहीं करना, so this is fan, bell. So F for phalodipine, amlodipine, nitrandipine, nifedipine. Nextly we have lacidipine and lercanidipine. Okay, so these are the dipines that are present in the present as a subclass of calcium channel blockers, which are used in antihypertensive drugs. Okay, so these are the three classes of drug that we have discussed till now. Now moving on towards the next. So next two important classes of drugs. Basically तो इसमें से जो पहली है वो कौन सी है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम inhibitors. Okay, in this we have ACE inhibitors. Okay, in ACE inhibitors there is prils in the end of the drugs. So we have captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Okay, nextly we have ARBs. ठीक है, angiotensin receptor
blocker which have sartan in the end of their name, which have sartan in the end of their name. So these are known as losartan, candesartan, valsartan. Nextly we have irbesartan. Nextly we have telmisartan. ठीक है. So these drugs basically function on the angiotensin receptor, and we will discuss it we will discuss in it later on that angiotensin receptor blocker basically मतलब एंजियोटेंसिन जो हमारा रिसेप्टर होता है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक एंजियोटेंसिन 1 होता है और एक एंजियोटेंसिन 2. सो ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रहते हैं ये बेसिकली फंक्शन करते हैं एंजियोटेंसिन 1 पे, ठीक है, जिसका फंक्शन होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ सिंपैथ, वो क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है बेसिकली, ठीक है, जो हमारा रिसेप्टर 1 होता है, तो ये उसको क्या करता है बेसिकली उसी को ब्लॉक कर देगा. नाउ द थर्ड सब ग्रुप ऑफ दिस ड्रग वी हैव डायरेक्ट रेनिन inhibitors. We have direct renin inhibitors. So in this we have aliskiren. ठीक है, aliskiren. It directly acts on the renin. ठीक है, renin क्या होता है, एंजाइम रिलीज करता है, हमारा जो किडनी रहता है जब हाइपोटेंसिव स्टेट मतलब आती है तो कंपनसेट करने के लिए, ताकि हाइपरटेंसिव मतलब कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू मतलब कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू जो भी हाइपोटेंसिव स्टेट है उसको मैनेज किया जाए, ठीक है, तो रेनिन सिक्रीट कराता हमारा किडनी, उसको ये क्या करेगा बेसिकली उसी को इनहिबिट कर देगा. सो देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन 2 फर्दर ऑन. सो दिस इज मेन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ग्रुप और इंपॉर्टेंट ग्रुप. द नेक्स्ट और फाइनल ग्रुप दैट वी हैव इज sympatholytic agents. We have sympatholytic agents, and in this we have firstly the alpha blockers. We have alpha blockers. alpha blockers के अंदर में क्या आ जाएगा, जोसिन्स आ जाते हैं हमारे सारे, क्या आते हैं, जोसिन्स. So we have prazosin, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ओके. एंड नेक्स्टली बीटा ब्लॉकर्स प्रेजेंट रहते हैं. क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. अब बीटा ब्लॉकर्स प्रेजेंट रहते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स में हमको क्या याद रखना है कि एंड में क्या प्रेजेंट रहता है, लॉल, LOL, ठीक है. सो वी हैव our mnemonic, that is MAP. So we have metaprolol, tenolol, and propranolol. Okay. Nextly central sympatholytic, ठीक है. सिंपैथेटिक एक्टिविटी का क्या करना है हमको, उसको कम कराना है, तो उसका ब्रेकडाउन कराने के लिए क्या कराएंगे, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स देंगे. दीज आर क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा, alpha methyl dopa. Nextly we have lastly we have another sympatholytic drug, that is, or sympatholytic agent, that is क्या कहते हैं उसको, अल्फा प्लस बीटा
blocker combinedly. So in this we have LC, labetalol and carvedilol. Okay, so this is our whole classification on antihypertensive drug. We have discussed the five classes. That is, firstly we have diuretics. In diuretics we have high saline diuretics, we have furosemide. Thiazides we have hydrochlorothiazide, indapamine, chlorthalidone, and finally we have potassium sparing diuretic. We have potassium sparing diuretic in which we have our mnemonic C, that is spironolactone, eplerenone and amiloride. ठीक है. Next class of drug that we have is calcium channel blocker, जिसके अंदर क्या आ जाता है, बेसिकली हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हमारे डिपीन्स आ जाएंगे, वेरापामिल आ जाएगा, डिल्टियाजेम आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्टली अगर बात की जाए तो ये सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स हो गए. ठीक है. इसमें 4 क्लासेस हैं. अल्फा में क्या है, जोसिन्स आ जाएंगे. बीटा में क्या है, लॉल, बीटा. ठीक है. सो MAP, metoprolol, tenolol and propranolol. Nextly we have central sympatholytic drugs in which we have clonidine and methyl dopa. Then next we have alpha plus beta blocker, that is labetalol and carvedilol. ठीक है. नेक्स्टली वी हैव रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स एंड फाइनली वी हैव रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स के अंदर 3 क्लासेस ऑफ ड्रग आ जाएंगी. एस इनहिबिटर्स, जिसके पीछे हमारा क्या आता है, प्रिल्स आता है. सो कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, पेरिंडोप्रिल. ठीक है. एंड नेक्स्टली ARBs वी हैव सार्टन in the and that is losartan, candesartan, valsartan, irbesartan, telmisartan. ठीक है. एंड नेक्स्टली वी हैव डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, दैट इज एलिसकिरेन. ठीक है. सो ये हमारी सारी क्लासेस ऑफ ड्रग हो गया बेसिकली. ठीक है. और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया. और फाइनली वेजो डायलेटर. सो वी हैव एट्रियोलर, that is MDH, minoxidil, hydralazine, diezoxide, and finally we have our atriolar plus venodilator, that is sodium nitroprusside. Okay, so we are done with our classification. Moving on. Okay, so moving on further, we will discuss about hypertension. Okay, and before moving on towards hypertension, we will firstly discuss about the blood pressure. We will discuss about blood pressure and its attributes. Okay, so blood pressure की अगर बात करें तो it is lateral pressure exerted on the wall. Lateral pressure exerted on the wall of vessel by flowing column of blood. Okay, its types are systolic blood pressure. Okay, nextly diastolic blood pressure. Okay, systolic blood pressure, we have diastolic blood pressure. Nextly we have pulse pressure, and finally we have mean arterial pressure. Okay, so systolic blood pressure is the maximum value of blood pressure. Okay, या कहा जाए तो maximum pressure during ventricular systole. Ventricular systole. Okay, what is diastolic blood pressure? So it is minimum
प्रेशर, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर diastole. Okay, nextly pulse pressure is the difference between systolic blood pressure minus diastolic blood pressure is equivalent to the pulse pressure, and mean arterial pressure is equivalent to diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. What? Diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. ठीक है. So blood pressure क्या हुआ कि suppose ये L लेंथ हो गई, ठीक है, L लेंथ हो गई, ये डायमीटर हो गया D, ठीक है, ये डायमीटर हो गया है D. तो इस L लेंथ में जो पर्टिकुलर ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो जो लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, जो लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा वॉल्स पे, ठीक है, ब्लड वेसल की, जो लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा ब्लड वेसल्स की वॉल पे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? बेसिकली ब्लड प्रेशर कहेंगे. सो और ये क्या है? हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि कॉलम ऑफ ब्लड पे ले रहे हैं, ठीक है. सो लैटरल प्रेशर exerted on the wall of vessel by flowing column of blood. So in this we have systolic blood pressure, we have diastolic blood pressure, pulse pressure and mean arterial pressure. So maximum pressure जो exert होगा ventricular systole के टाइम पे, ठीक है, so that is systolic blood pressure. Nextly the diastolic blood pressure. So minimum pressure that is recorded during the or minimum pressure during the ventricular diastole. Nextly the pulse pressure. Okay, nextly the pulse pressure, ठीक है. So it is the difference between the systolic and the diastolic blood pressure. And lastly we have MAP, that is mean arterial pressure. So it is the sum of diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. So this is about the general attributes or definition of blood pressure. Now moving on towards the hypertension. Hypertension. So increased blood pressure is known as hypertension, ठीक है. So increased blood pressure is known as hypertension, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो मतलब हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन जो हमारा होता है वो बेसिकली कितने टाइप का हो सकता है? इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. सो इट कैन बी ऑफ प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन, and nextly the secondary hypertension. Secondary hypertension. So अगर cause कहा जाए प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन का, so no underlying cause, no underlying cause, no underlying cause. इसका कोई अंडरलाइंग क्या कॉज नहीं है प्राइमरी प्राइमरी हाइपरटेंशन का, ठीक है. अब जब बात करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, ठीक है, दिस वन इज ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप. नेक्स्टली जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो गया, सो ये किस वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू रीनल, वैस्कुलर और एंडोक्राइनल कॉजेस. एंडोक्राइनल कॉज, ठीक है. सो ये तो हो गया हमारा क्या? हाइपरटेंशन के टाइप्स. कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है. इसका कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है, और मोस्ट कॉमन टाइप का होता है हमारा कौन सा? प्राइमरी और एसेंशियल वाला, ठीक है. और नेक्स्टली क्या हो गया? सेकेंडरी. सो इट अकर्स ड्यू टू द रीनल और वैस्कुलर और एंडोक्राइनल causes. Okay, so now moving on towards the next, we will discuss the
वेरियस ग्रेडिंग ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, वी विल डिस्कस द ग्रेडिंग ऑफ हाइपरटेंशन. सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस एंड सो दीज स्टेजिंग आर okay. So different staging of hypertension. So in this we have normal value of systole and diastole. ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिस्टोल इज 120 mm ऑफ Hg. ठीक है, फिर प्री हाइपरटेंसिव. फिर स्टेजिंग की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 स्टेजेस रहती हैं. ठीक है, सो प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में 120 टू 139. ठीक है, और स्टेजिंग 1 में कितना हो जाएगा, 140 हो जाता है. ठीक है, 140 टू 159. नेक्स्टली सेकंड स्टेज में 160 टू 170, सॉरी इसमें कितना रहता है, 160 ही रहता है. ठीक है, इट विल बी मोर देन और इक्वल टू 160. नेक्स्टली द थर्ड स्टेज दैट इज, इसमें कितना हो जाता है 160 टू 170, या सॉरी 160 टू कितना हो जाता है 179. ठीक है, 160 टू 179 और 180 टू 209, ये 2 वैल्यूज रहती हैं स्टेज थर्ड की. एंड फाइनली द हाईएस्ट प्रेशर दैट कैन बी रिकॉर्डेड इज 210 mm ऑफ Hg. इसके ऊपर रहता है तो क्या होता है, प्रेशर बेसिकली रिकॉर्ड नहीं होता है. ठीक है, या इसके ऊपर आएगा नॉर्मली तो फिर वो सिर्फ सारा स्टेज 4 में आ जाएगा. ठीक है, क्लासिफाइड हो जाएगा. सो कितना हो गया 120 mm ऑफ Hg, 120 टू 139 हो गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 140 टू, आगे वाली वैल्यूज को याद रखिए 120 120. ठीक है, 120 टू 140 चला गया. यहाँ पे क्या हो गया 140 आ गया, यहाँ 160 है, यहाँ 160 से 180, 180 से 209 एंड फाइनली द वैल्यू इज 210. ठीक है, mm ऑफ Hg. नाउ टॉकिंग अबाउट द डायस्टोलिक. ठीक है, सो जब डायस्टोलिक की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या रहता है, इट विल बी मोर देन और इक्विवेलेंट टू द 80 mm ऑफ Hg. ठीक है, मोर देन और इक्विवेलेंट टू 80 mm और लेस देन कहा जाए तो. ठीक है, लेस देन कहा जाए तो, ठीक है, लेस देन 80 mm ऑफ Hg. इसमें कितना होता है 80 टू 89 mm ऑफ Hg हो जाता है. नेक्स्ट, ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारा 89 या सॉरी 90 टू 99, ये कितना हो गया 90 टू 99 mm ऑफ Hg हो गया. नेक्स्टली इट विल बी इक्विवेलेंट टू और ग्रेटर देन 100 mm ऑफ Hg. ठीक है, नेक्स्टली 100 टू कितना हो जाएगा 109, और क्या हो जाएगा 109 टू 1 या 100 और 110 टू 119 एंड लास्ट और हाईएस्ट प्रेशर ऑफ डायस्टोलिक दैट कैन बी रिकॉर्डेड इज 120 mm ऑफ Hg. ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ, नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो ये कितना हो गया 102 हो गया, कितना 102 हो गया, 109 टू कितना हो गया 110. ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज. अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि साइट, किस साइट पे कौन सी ड्रग फंक्शन कर रही है. बेसिकली अभी जो हमने जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग पढ़े अभी तक, बेसिकली वो कौन से साइट पे फंक्शन कर रही है. ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है. ठीक है, ठीक है, साइट ऑफ मेजर एक्शन की बात करते हैं. सो दिस इज आवर वेजोमोटर सेंटर, दिस इज आवर वेजोमोटर सेंटर. ठीक है, यहां से न्यूरॉन निकला. ठीक है,
ये क्या है हमारा हार्ट है, ठीक है, दिस इज हार्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा हार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्टली क्या आ गया, ये मैं क्या लिख रहा हूं 81, ठीक है। तो ये ए आर बीज यहाँ पे फंक्शन करेंगे बेसिकली, ठीक है, ए आर बीज, ठीक है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर फंक्शन करेगी, ठीक है। अब हार्ट की बात करें तो हार्ट पे कौन कौन फंक्शन करेगा, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फंक्शन करेगा, ठीक है। और इसमें कौन फंक्शन कर पाएगा, वेजो डायलेटर्स, अल्फा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फंक्शन कर पाएंगे किस पे, ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। हार्ट पे कौन कौन फंक्शन कर पाएगा, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेजो मोटर, अब ये क्या हमारा, ये गैंग्लियन हो गया, ठीक है, सेंट्रल, तो यहां फंक्शन कौन करेगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर फंक्शन करेगा बेसिकली इस पे, रिजर्पाइन हो जाएगा जो कि, ठीक है। इसके बाद वेजो मोटर सेंटर की बात करें तो यहाँ पे कौन होगा हमारा, सेंट्रल सिंपैथो लाइटिक ड्रग, ठीक है, सेंट्रल सिंपैथो लाइटिक ड्रग, ठीक है, बेसिकली फंक्शन करेगी। नाउ मूविंग ऑन, किडनी, किडनी पे कौन फंक्शन कर रहा है, ठीक है। सो डायरेक्टली किडनी पे कौन फंक्शन करेगा, ये हो गया हमारा कौन सा, बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स, ठीक है। फिर किडनी एक एंजाइम रिलीज कराती है, किडनी क्या कराती है, बेसिकली एंजाइम रिलीज कराती है जिसको कि क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं रेनिन, क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं, ठीक है। सो रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स यहाँ पे फंक्शन करेंगे, कहाँ पे, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। और ये कौन से हैं हमारे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, कौन सा था हमारे पास, एक ही क्लास, एक ही नाम है, एलिस, एलिस कीरेन, ठीक है, direct renin inhibitor. Now talking about the next one, so we have angiotensin 1 that is converted to angiotensin 2, ठीक है। and in this class we have our ACE मतलब ACE एंजाइम ACE, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम जो रहता है ये बेसिकली ये वाली जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है, लंग्स के अंदर होती है, फर्स्ट सेकंड प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप ऑफ ड्रग आ जाएगा, एस इनहिबिटर्स आ जाएंगी, दैट इज कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरेंडोप्रिल, ओके। सो दिस इज आवर साइट ऑफ एक्शन की कौन से साइट पे कौन सी ड्रग फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो जो वेजो मोटर सेंटर है, मतलब सेंट्रल जो सीएनएस के पार्ट पे है, तो उसमें सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग जैसे कि क्लोनिडिन हो गई और अल्फा मिथाइल डोपा हो गई, तो ये फंक्शन कर रही है। नेक्स्टली द गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, ठीक है। तो अल्फा एड्रिनर्जिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर हम लोग आगे देखेंगे, तो इसमें क्या आता है, रेजरपाइन आ जाती है हमारी बेसिकली, ठीक है। नेक्स्टली अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो इसमें कौन सी है, वेजोडाइलेटर, ठीक है, अल्फा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एआरबीज दैट इज फंक्शनिंग ऑन द 81 रिसेप्टर, ठीक है। दो टाइप के रिसेप्टर मैंने बताए थे, एक 81 और 82। तो जो 81 टाइप रिसेप्टर होता है उस पे बेसिकली फंक्शन कौन करता है, एआरबीज, दैट इज मतलब एआरबीज, ठीक है, हमारा हो गया। उसके बाद हार्ट की बात करें तो हार्ट पे बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फंक्शन कर रहा है। किडनी पे डायरेक्टली कौन, मतलब अगर देखा जाए तो डायूरेटिक्स जो भी हो गया उसके टिब्यूल्स, और हमने देखा ही उनका जो भी फंक्शन है, कहाँ पे किस कौन से डायूरेटिक का फंक्शन होता है, या हमारा कौन सा हो गया, बीटा ब्लॉकर, वो फंक्शन कर रहा है। नेक्स्टली जब क्या होता है, कभी भी ब्लड प्रेशर फॉल होता है, सो किडनी एक्सक्रीट आउट द रेनिन, ठीक है। किडनी क्या करता है, रेनिन को एक्सक्रीट आउट करता है। तो रेनिन को डायरेक्टली इनहिबिट करने के लिए वी हैव द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, दैट इज वी हैव एलिसिरेन। सो इट basically stops the conversion of angiotensin into angiotensin 1, ठीक है, which further leads to the decreased formation of angiotensin 2, है ना। और ये क्या है हमारा, ये जो angiotensin 1 से angiotensin 2 में
जो कन्वर्जन होता है ये बेसिकली कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, ठीक है। तो ये एस इनहिबिटर्स जो होंगे हमारे जितने भी प्रिल्स आ जाते हैं, दैट इज वी हैव कैप्टोप्रिल, इनैलोप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ठीक है। सो ऑल द प्रिल्स दैट वी हैव, सो इसमें ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सो वी आर ओवर विद द साइट ऑफ मेजर एक्शन। Okay, so till now we have discussed, okay, so till now we have discussed about the classification of antihypertensive drug. We have seen the attributes, various attributes that we should need or we should know about the antihypertensive drugs. That is blood pressure, we should know about the definition of blood pressure or various attributes, that is systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse pressure and mean arterial pressure. And nextly moving on, we have discussed about the hypertension and the वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। क्या क्या हो गया हमारा, प्राइमरी और एसेंशियल एंड सेकेंडरी टाइप, ठीक है। प्राइमरी का क्या है कॉज, प्राइमरी का कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं है, ठीक है, और वो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। सेकेंडरी वी हैव वेस्क्यूलर, एंडोक्राइनल एंड रीनल कॉजेस, ओके। एंड वी हैव सीन द स्टेजिंग ऑफ द staging of the hypertension according to the values of diastole and systole, ठीक है। Nextly moving on, we have seen the various sites of action कि कौन से साइट पे कौन सी ड्रग फंक्शन कर रही है basically. So we have started our topic and in the upcoming days we will continue with our cardiovascular system topic. Okay, thank you.